Students, welcome to session 6. We continue our discussion on demand forecasting. These are the contents that would be covered in session 6. Okay. So as we discussed, causal methods, which are also called econometric methods or explanatory methods. See, these methods can be used when historical data pertaining to the sales, the past sales of the product is available, and from that past sales data you could draw a functional relationship, a correlation between this past sales and a factor or some factors which were causing this past sales, right? So if it is possible to build this type of a relationship, in other words, if it is possible to get hold of these factors, data pertaining to these factors which were causing the past sales of the product, then causal forecasting method can be used. And some examples had been given, factors which can affect the sales, the future demand of the product, population present in a region, the per capita income of the inhabitants of a region, the expenditure that the company has made on promotion, advertisement, etc., etc. It can be anything. And these relationships between the past sales parameter, which is the dependent parameter, the dependent variable, and the factors which have been affecting the sales or which would affect the future demand, these factors, this dependent factor and the independent factors are expressed mathematically. And it was finally said that causal forecasting methods are most suitable when you have to obtain medium range forecasts, right? Okay. So there are many causal forecasting methods that are available. The most simple and the most popularly used is called the linear regression method. This is also known as the method of least squares. Mind it, ये method तभी यूज होगा जब आपके पास दो ही पैरामीटर्स या वेरिएबल्स हैं. एक तो डिपेंडेंट पैरामीटर दैट इज पास्ट सेल्स या फ्यूचर डिमांड जो आप ढूंढना चाह रहे हो, और दूसरा एक फैक्टर जो इस पास्ट सेल्स को करवा रहा था, जिस पर पास्ट सेल्स डिपेंडेंट थी या जिस पर फ्यूचर डिमांड डिपेंडेंट होगा. सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज one dependent variable that is sales or demand and there is one independent variable that had been causing it. दूसरी कंडीशन, लीनियर रिग्रेशन मेथड तभी यूज होगा जब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में नियरली लीनियर रिलेशनशिप है. मतलब एक के बदलने पर दूसरा प्रोपोर्शनेटली बदलता है. तो जब आपके पास पास्ट सेल्स पर डेटा आ गया और जब आपके पास इस फैक्टर पे भी उस पास्ट पीरियड के लिए डेटा आ गया जिसके लिए आपने पास्ट सेल्स रखी हुई है, तो आप इस पेयर ऑफ डेटा को प्लॉट करिए और प्लॉट करने पर देखिए कि क्या ये दोनों पैरामीटर्स लीनियरली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. अगर आप प्लॉट नहीं करना चाहते तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, स्कैटर डायग्राम करते हुए कि आप इनमें पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लीजिए, विच इज ए मैथमेटिकल पैरामीटर और जो कोरिलेशन दिखाता है दो पैरामीटर्स में. तो अगर जब पास्ट सेल्स और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पास्ट वैल्यूज पर आप आर निकालते हो, इफ दैट आर कम्स आउट टू बी नियरली यूनिटी, तो इसका मतलब है लीनियर रिलेशनशिप है आपकी पास्ट सेल्स में और इस इंडिपेंडेंट फैक्टर में जो सेल्स को इफेक्ट करता रहा है. तब आप लीनियर रिग्रेशन मेथड यूज कर सकते हो. एंड इफ दैट्स द केस, व्हाट इज द इक्वेशन दैट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx. बट बच्चों माइंड इट, y क्या है? पास्ट सेल्स. x क्या है? वो फैक्टर जो सेल्स करवाता रहा है. a और b क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं. So, if you are using linear regression method, this is the governing equation. Forecasting की लैंग्वेज में लिखना हो तो y is past sales, या दूसरे शब्दों में y is the future demand that we are trying to forecast. This is the dependent variable. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम हमेशा स्टूडेंट्स मानते हैं कि we are sitting in period t.
present period is t and we are forecasting for the future period, next period t+1. तो हमने क्या लिख दिया यहां, ये देखिए ft+1 means forecast for the future period t+1 would be equal to a plus b x t+1. ध्यान दीजिए, अब आप लीनियर रिग्रेशन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर तभी यूज कर सकते हैं कि जब आप कह रहे हो कि मुझे भाई 2 महीने बाद के लिए बताओ कि फोरकास्ट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 महीने बाद इस पैरामीटर की जो आपकी सेल्स को इफेक्ट कर रहा था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 महीने बाद क्या है। अगर आप कहते हो कि सेल्स बताओ 1 हफ्ते बाद, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि 1 हफ्ते बाद इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। सो ft+1 इज द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ए इज बच्चों द, ये लिखा है हमने यहां a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स वेयर a इज द इंटरसेप्ट वैल्यू। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये आपके एक्चुअल प्लॉटेड पॉइंट्स थे पास्ट सेल्स पर और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर x पर। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ढूंढी है जो इनमें एडिक्वेट रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है। क्यों कहते हैं इसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, क्योंकि ये जो डेविएशन है, वर्टिकल डेविएशन, देखिए इस x वैल्यू पर y वैल्यू ये थी, ये, लेकिन हमने क्या मानी है इस लाइन के द्वारा, ये। तो ये इतना आपके पास देखिए डेविएशन है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना डेविएशन है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना डेविएशन है। तो ये जो लाइन है, तब ये बेस्ट फिट लाइन है अगर जो ये डेविएशंस आ रही हैं उनका, अगर हर डेविएशन का आप स्क्वायर कर दो और फिर सम कर दो, तो लीस्ट सम जो आएगा वो इस लाइन से आएगा। ओके, आई कम बैक, वो इस लाइन से आएगा। अगर आप कोई और लाइन बना देंगे, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो भी डिस्क्राइब कर रही है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन इसके अलावा कोई भी लाइन बनाने पर जो ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस है, ये बढ़ जाएगा। सो जो लाइन आपको लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस देती है, वो लाइन हम ढूंढकर बनाते हैं यहां। दैट इज वाई द मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सो व्हाट इज ए इज कि अगर आप ये लाइन y एक्सिस से टकरा जाए तो जो वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट पर, दैट इज ए। एंड स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो स्लोप है, देखिए स्लोप ये भी हो सकती थी, स्लोप ये भी हो सकती थी। ये जो स्लोप है, अगर आप इसको tan थीटा कर निकाल लें और फिर थीटा tan इनवर्स करें, तो जो b है दैट इज द स्लोप। तो ये a और b बना देते हैं इस लाइन को यूनिक, और ये a और b की वैल्यू आपको निकालनी है इस इक्वेशन से। सो व्हाट डू वी डू इन दिस मेथड कि हम सीरीज ऑफ जो हमारे पास x वैल्यूज थी पास्ट सेल्स पर, वो रही ये y, और जो उसी पास्ट पीरियड्स के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज थी, अगर हम उन सब वैल्यूज की समीशन कर दें और हम इस इक्वेशन को देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो यहां मैंने आपको दिखाई, दिस इक्वेशन, अगर ये सीरीज ऑफ पास्ट पीरियड्स के लिए हम y की वैल्यूज और x की वैल्यूज ले लें और इक्वेशन 1 में पुट कर दें, और फिर ये सीरीज ऑफ जो इक्वेशंस बन गई अगर उनकी समीशन कर दें, तो वील गेट समीशन y इज इक्वल टू na b समीशन x। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन 1 को, दिस इक्वेशन 1, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा xy इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर, और फिर अब समीशन कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर कर हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू, और a और b की वैल्यू जब आ जाती है और पास्ट पीरियड के लिए हमारे पास a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, फ्यूचर पीरियड के लिए जिसके लिए हम डिमांड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उस फ्यूचर पीरियड के लिए x की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द future demand, that is y. But how do we do it? See, if this independent variable is in terms of time, तब तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी पास्ट वैल्यूज दी हैं उसमें जो मिडल पीरियड बनता है, हम मिडल पीरियड को डेजिग्नेट कर देते हैं 0, और
it is better that we'll discuss it when you come to the class and we do some numericals on it. और यहां आप अभी ये स्लाइड्स देख लीजिएगा. आई होप इट वुड बिकम क्लियर टू यू. सो अगर टाइम के टर्म्स में है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू मेक समीशन एक्स एज 0 एंड देन ए और बी इन इक्वेशन से आपके पास आ जाएंगे. ऑन द contrary, if the independent variable x is not time but is some other variable like population in the city or per capita income of the inhabitants, then आप 0 नहीं बना सकते समीशन x को. तब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ये फॉर्मूला बनते हैं a और b के लिए. यूजिंग दीज फॉर्मूले then a and b would be found out, and then putting the value of x for a given future period, the sales or the future demand in that period can be found out.